हाँ जी, dear students, how is your preparation going on? हाँ जी बेटा, कैसी चल रही है सबकी प्रिपरेशन एमएसटी 1 की? बस मैम चल रही है अभी। अच्छा, नोट्स वगैरह तो सब सारे सब्जेक्ट्स के हैं ना सब बच्चों के पास? यस मैम सब है। ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको कल बोला था यू हैव टू कम प्रिपेयर विद द टॉपिक फिजियोलॉजिकल आयंस. एवरीवन हैज रिवाइज्ड दैट टॉपिक? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. So I will be giving you question beta. Again, it will be in the Google form only, ठीक है? But you have to write your answers same in the inorganic chemistry copy, ठीक है? And then you have to upload there on Google Classroom. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. यस मैम। No one, Yes, ma'am. no Yes, one, ma'am. no one has to write in Google form. You all have to write in the your copy, and then you will be make the PDF and then upload there in Google Classroom. So I'm just sharing. Only 38 students are over here. What is the reason why less percentage of students today? Any specific reason? Or they are No, prepare, ma'am. or they are preparing much for their MST 1, that's why they are not attending classes? Possibly, शायद क्या पता. Because some of the students like from the B batch, they are requesting that they need 2 days preparatory leave for their MST 1. So is it same that batch 1 is also interested for this? Because they are putting this message that they need 2 days leave, that because after the classes they are not, it is not possible for them to prepare. Is it the same problem you people are also feeling? Although we have Yes, not ma'am. told, but it is our interest now. मतलब हो सके तो हमने हालांकि बोला नहीं है. हाँ जी. But we want more. Yes, But ma'am. बेटा MSc में we never give any preparatory leave. जो preparatory leaves होती है ना बेटा, that is in your end term paper only, जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है ना? वहाँ पे we give you 5 days preparatory leave before starting your end term No, final ma'am, exam. actually अगर हम कॉलेज में होते हैं ना तो लाइक वहाँ पे तो ऑफलाइन क्लास होती है तो उतने प्रॉब्लम नहीं होती. यहाँ पे हमें 4 बजे तक पढ़ना होता है और लैपटॉप के सामने, और उसके बाद फिर वापस सेम प्रोसेस से हमें पढ़ना बहुत I मुश्किल can होता है. understand. I can understand. और वहाँ पे भी if like some students want to do some preparation, so what they do they take a leave from the class for that, like na, they don't come. But in the online, this is the problem that student is doing these from the home only, so they have to attend the class from the laptop. But I can understand students, so it's up to you, है ना? You can discuss with your CC. It's if she allows you, then we will think for that. Okay beta? So you have Okay. to मैम talk to your, जैसे हमारा पेपर होएगा उसके बाद मैम डायरेक्ट नेक्स्ट दिन पेपर है तो हाँ मैम जी. इस पेपर देखिए हम थक जाते हैं ऊपर से मैम फिर एक स्ट्रेस रहता है दिमाग पे ज्यादा ही रहता है स्ट्रेस मैम उसमें गैप तो होना चाहिए थोड़ा सा. हाँ तो बेटा अगर ऐसा है तो आप यू कैन डू वन थिंग, जस्ट टॉक टू योर सीसी, है ना? जैसे बैच बी इज ब्रिंगिंग दिस इन देयर नॉलेज ऑफ टीचर्स एज वेल एज फॉर द सीसी ना, you can also talk to her if she allows, and if she talk to the higher authorities, and if they allow, then um, it is possible. ठीक है? यस मैम पर ठीक है. क्योंकि ऐसे रेगुलर पेपर्स होना तो मैम इतना हो नहीं नहीं, पाता. पेपर्स में तो आप लोगों का जो डेट शीट है, आई थिंक फॉर मंडे टू फ्राइडे यू हैव पेपर्स फॉर 5 डे, है ना? 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, देयर इज नो गैप, यस मैम. है ना? तो देयर इज नो हॉलीडे इन दोज पेपर्स, एंड वो तो चेंज भी नहीं होगा बिकॉज इट इज लाइक आवर प्रोटोकॉल एवरी टाइम. The papers start from Monday, and most probably it's end by Friday only. So we keep 5 working days for the paper. If you have some like more subject, then it may be on Saturday or it may go to next Monday. ठीक है? But यहाँ पे I think आपके सिर्फ 5 ही subjects है.
छः 6 हैं आपके? यस मैम। तो मंडे को हमारा एक आखिरी हो जैसा है। अच्छा, मतलब आपका जो है बीच में सैटरडे संडे का गैप है, उसके बाद मंडे को आपका लास्ट पेपर है। यस मैम। तो मंडे को कौन सा पेपर है आपका डेट शीट में? एनालिसिस मैम। एचपी एचएपी और एनालिसिस? मैम एनालिसिस है। एचपी मैम। स्टार्टिंग में एनालिसिस एचएपी है, लास्ट में हमारा एनालिसिस है। ओके। एंड इनऑर्गेनिक के लिए कोई छुट्टी नहीं है? मीन्स एनालिसिस में आपको No, 2 ma'am. छुट्टियां मिली है ना? एनालिसिस में आपको 2 छुट्टियां मिली है। चलो कोई बात नहीं, मतलब दे हैव गिवन यू 2 डेज गैप ओवर देयर, है ना? तो बेटा फॉर दिस यू कैन टॉक टू योर सीसी, है ना? वही चीज के बारे में आगे बात करेंगे। So right now I am uploading your paper on Google Classroom, ठीक है? So you start doing that paper, and in this class only we will be discussing uh, all the questions over here only. Just check it is there now on Google Classroom. There are 10 questions and 2 marks each. You मैम have to write to the point. हाँ जी। मैम हम लोग कुछ बच्चे हैं जो गूगल क्लासरूम पे नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक है बेटा, शेयर कर देती हूँ। हाँ जी बेटा, मिल गया पेपर बाकी बच्चों को? नो मैम। यस मैम।
बेटा मैंने शेयर कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बैच 1 के, ठीक है? Okay, ma'am. ओके मैम। So start doing, beta. I'm again repeating, everyone has to do this test in copy and then upload, okay? मैम हेलो बेटा माइक ऑफ करो, गिरधर गोपाल। ऑफ करो बेटा अपना माइक। सॉरी मैम, सॉरी। हेलो मैम। हेलो हाँ जी, हाँ जी। मैम, जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला क्वेश्चन होगी 2 नंबर का। कौन से वाला? तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिटेल इन द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपके पास जो पेपर आया अभी गूगल क्लासरूम में, दैट इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मैम पहला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का, फिर डेंसिटी। बेटा मैंने पहला क्वेश्चन तो डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट दिया है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है? Define electrolyte, ma'am. हाँ जी बेटा, आप कोई और रिवीजन टेस्ट खोल रहे हो? रिवीजन टेस्ट 2 खोलो। ओके। मैम कितने क्वेश्चन है? टोटल 10 क्वेश्चन है बेटा। मैम मुझे तो 9 ही मिले हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट वाला, सेकंड 2 functions of electrolyte, third classify body fluid compartment, fourth deficiency condition of sodium, 5 enlist any 4 functions of magnesium, 6 name the major ions involved in fluid and electrolyte balance, 7 major location of different ions, 8 important functions served by chloride ion, 9 define hemosidrosis, and 10 write a short note on calcium. आपका मैम कौन? बॉडी मैम बॉडी फ्लूइड नंबर कंपार्टमेंट 5 नंबर पूरा एक्सप्लेन करेंगे मैम? बेटा सिर्फ आपने स्पेसिफिकली उनके नाम देने हैं, ओके ठीक मैम, है? और उनके बारे में 1-2 लाइन जो भी आपको पता है, ओके मैम। ज्यादा डिटेल में नहीं देना, ठीक है?
मैम 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 है enlist any 4 functions of magnesium. मैम हाँ जी, मैम इलेक्ट्रोलाइट में केवल डिफिनेशन लिख दें हो जाएगा या फंक्शन हाँ लिखनी पड़ेगा? बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशन ही देनी है आपको, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट. वही, ओके। हाँ जी बेटा, कितने क्वेश्चंस हो गए?
5 होंगे। मैम 5 ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम फोर्थ क्वेश्चन में सोडियम की डेफिशिएंसी के सिर्फ नाम लिखने हैं या उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है? बेटा 1 लाइन डेफिनेशन दे दो हाइपो और हाइपर नाइट्रेमिया की ना। ओके, थैंक यू। ओके।
हाँ जी बेटा, कितने क्वेश्चंस हो गए? 8 हो गया। ओके, मैम भी एवरीवन 5 हो गए। ओके बेटा, डू फास्ट।